Hello everyone, good evening guys and welcome to the YouTube channel of PRATHAM Test Prep. Myself G. Sharma and here we are with yet another current affairs session which will cover the current affairs from the 21st of March to the 26th of March. I hope you all are doing absolutely well. Good evening everyone. I hope you all are doing absolutely well, and in this current affairs session we will cover the current affairs from the 21st to the 26th of March, right? Now guys, if you're new over here, please subscribe to PRATHAM Test Prep's channel if you haven't done already, because trust me, you are missing on to a lot of informative content. We do post a lot of videos, a lot of informative content for you guys on PRATHAM Test Prep's YouTube channel, so make sure that you subscribe to the channel and you get access to all that content that we post on the channel, right? So this particular series, this particular YouTube session is a part of series which is known as Current Affairs SAMVAD. Now this particular episode of Current Affairs SAMVAD or the particular series go live on every Monday and Friday at 8:30 p.m. So every Monday and Friday at 8:30 p.m. we have these sessions of current affairs wherein we will cover the current affairs of the past 2 to 3 days or a past few, a couple of days or a week, right? So in this particular session, we will be covering from the 21st to the 26th of March. But without wasting too much of time, let's quickly see the quote of the day. And for today, the quote is, "Success is the sum of efforts repeated." Yes, when you put efforts and when you repetitively put efforts, that leads to success. Good evening, Riddhi. That leads to what? That leads to success. Now, as we all know that current affairs is a very, very important part of CUET general test, right? Current affairs is an extremely important part of CUET general test. If you want to give CUET, if you are writing general test, because trust me, if you write general test, you open a lot of options, you open a lot of doors for yourself. So if you are, if you are actually studying current affairs, your general test is super sorted, because trust me, when we say current affairs, that means what? That means CUET will ask you current affairs on one-liners basis. ठीक है, आपसे one-liner के basis पे it will ask you current affairs. So it is very, very important for us to know that what all has happened, right? So let's quickly see the first news. We have World Water Day. Now ये जो news है, इसमें आपसे क्या है, कौन सा category का है? Let's see that first. कौन सी category का है? It is of important days, right? नाउ CUET हो या और कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, आपके लिए वर्ल्ड वाटर डे से न्यूज कैसे आ सकता है, वर्ल्ड वाटर डे से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ईदर दे विल आस्क यू कि डेट क्या है, कौन सी डेट को वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व हो सकता है, राइट? या फिर दूसरी चीज वो आपसे पूछ सकते हैं थीम, राइट? सो ये थीम हो गया क्या? थीम तो आपका हो गया करंट अफेयर्स का पार्ट. अब डेट तो चेंज नहीं होगी वर्ल्ड वाटर डे की, सो डेट क्या हो गई? डेट विल बी अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके, राइट? गुड इवनिंग अनन्या. डेट विल बी अ पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके. लेकिन जो लास्ट ईयर हमने CUET के जनरल टेस्ट के पेपर में नोटिस किया था, राइट, व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड नॉट ओनली इन CUET बट इन CLAT ऑल्सो, इन AILET का पेपर ऑल्सो, इन Xavier's also, in Christ also, वो लोग, आई थिंक मैं ये YouTube सेशन में डिस्कस भी कर चुकी हूँ कि they don't necessarily ask you questions only on the basis of current affairs. What they do is they ask you questions basis current affairs का 360 डिग्री, राइट? वो आपसे करंट अफेयर्स का पूरा 360 डिग्री के उससे पूछेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्ल्ड वाटर डे है, हमें पता है कि वर्ल्ड वाटर डे ऑब्जर्व होता है 22 ऑफ मार्च को, ठीक है? अब मैंने इस साल का चलो थीम भी पढ़ लिया. इस साल का थीम क्या था वर्ल्ड वाटर डे का? इस साल का थीम है 2023 का, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस. अब किसी
अफेयर्स एग्जाम ने उन्होंने ना तो वर्ल्ड वाटर डे का मुझसे डे पूछा, ना ही उन्होंने मुझसे उसका थीम पूछा। वो क्या पूछ सकते हैं 360 डिग्री कवर करने के लिए? दे माइट आस्क यू कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड वर्ल्ड वाटर डे का उन्होंने या फिर कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करा कि 22 मार्च विल बी ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे, राइट? वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Now this question is not a current affairs question, but it is related to the miscellaneous information of current affairs. So that is the reason why, or there, to solve such questions, right? To solve or to know about such questions, these current affairs sessions are supremely important. Because अगर मैं आपसे current affairs की बात करूँ, probably you might study current affairs in your class handouts or from your monthly questionnaire or from monthly compendium. But from where you guys are gonna cover all such information, that is from these YouTube sessions. So make sure that whenever you are attending these sessions, just quickly jot down these important pointers, or later on what you can do, you can watch it at your own pace and you can write down these important pointers, because trust me, such questions comes in the entrance examinations, क्योंकि अब entrance examinations ने अपना approach थोड़ा सा different कर दिया है, ठीक है? ना वर्ल्ड वाटर डे को अडॉप्ट किसने किया था, किसने डिक्लेयर करा? यूएनजीए ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अब वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई यूएनजीए के हेडक्वार्टर्स किधर है? सो यूएनजीए के हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क एंड यूएनजीए इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। कब उन्होंने अडॉप्ट करा? उन्होंने दिसंबर 1992 के ईयर में बोला कि अगले साल से, यानी कि मार्च 1993 से हम क्या करेंगे? हम अपना वर्ल्ड वाटर डे जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट एडिशन कब ऑब्जर्व हुआ? फर्स्ट एडिशन ऑब्जर्व हुआ इन द ईयर 1993। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट? नाउ एक रिपोर्ट आई थी 2023 इसी साल में, यूएन की एक रिपोर्ट थी ऑन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस जो न्यूयॉर्क में हुई थी, एंड वो रिपोर्ट बताती है कि आज की डेट में भी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में से एक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है जिसे आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो नहीं मिलता, उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ क्राइसिस, राइट? आज भी है कि 26% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, आई रिपीट 26% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, दे लैक इन व्हाट? दे लैक इन safe drinking water, whereas 46% of the global population के पास properly managed sanitation facilities नहीं है। ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है, ये जो रिपोर्ट है ये यूनेस्को की रिपोर्ट है, राइट? जो कि यूएन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को ने ये रिपोर्ट रिवील की थी, जो ये कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में हुई थी, राइट? अगर आपसे कोई पूछे दैट विच इज द ओनली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन, सो यूनेस्को इज द ओनली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन। ये बात मैं आपको जब भी हमारा यूनेस्को न्यूज में आता है, आई थिंक ये हर बार मैं आपको बताती हूँ दैट द ओनली कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन इज यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक and cultural organization. So this is what the full form of UN is. Now UNESCO is. Now moving further to the next news of the day, we have Martyrs Day और शहीद दिवस। Now Martyrs Day और शहीद दिवस, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, आपका कंफ्यूजन मैं यहाँ पे दूर करती हूँ कि मार्टर्स डे और शहीद दिवस हमारे पास दो डेट्स है इंडिया में जो हमें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? एक डेट है आपकी जनवरी 30th, राइट? और जो दूसरी डेट है हमारे पास वो कौन सी है? वो है मार्च 23rd. सो दीज आर द टू डेट्स दैट वी ऑब्जर्व मार्टर्स डे और शहीद दिवस, राइट? जनवरी 30th क्यों? जनवरी 30th इसलिए क्योंकि उस दिन हम किसकी मेमोरी में ऑब्जर्व करते हैं? इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, राइट? वी ऑब्जर्व 30th January as Martyrs Day in the memory of Mahatma Gandhi because उस दिन महात्मा गांधी was assassinated, right? However, अगर मार्च 23rd की बात आएगी तो हम क्यों Martyrs Day ऑब्जर्व करते हैं? In the memory of भगत सिंह, राजगुरु and सुखदेव, right? किसके में? In the memory of भगत सिंह,
राजगुरु एंड सुखदेव, बिकॉज उनको क्या हो गया था, उनको फांसी लगी थी, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में उन्होंने आपसे क्या पूछा है, अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, रेफरेंस दिया है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का, तो आप क्या मार्क करोगे, मार्टर्स डे, यू विल मार्क मार्च 23 एज द राइट आंसर, शहीद दिवस ऑफ मार्च 23 एज द राइट आंसर। बट अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया है अबाउट गांधी, राइट, अगर उन्होंने गांधी जी के बारे में दिया है तो आप क्या मार्क करोगे, गांधी जी का रेफरेंस है तो क्या मार्क करोगे, तो मार्क करोगे January 30th एज द राइट आंसर इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी, राइट। सो मार्टर्स डे या शहीद दिवस इंडिया में क्यों ऑब्जर्व होता है, बेसिकली जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स, इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे टू रिमेम्बर दैट, जिनकी सैक्रिफाइसेस हुई हैं फॉर द कंट्री, टू रिमेम्बर देम, ये होता है। इसीलिए हमारे पास 2 मार्टर्स डे या 2 शहीद दिवस हम मनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस यू आर गेटिंग इट इन द क्वेश्चन, राइट। आपसे भगत सिंह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इनकलाब जिंदाबाद, जो बहुत ही फेमस एक कैच फ्रेज है, राइट, बहुत पॉपुलर हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद का कोट किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय भगत सिंह, राइट। सो दिस इज अबाउट मार्टर्स डे और शहीद दिवस। Moving further, we have Arnab Banerjee, named as the MD and CEO of CUET. आप सब ने CUET लिमिटेड के बारे में सुना होगा, जो कि क्या मैन्युफैक्चर करता है, इट मैन्युफैक्चर टायर्स, राइट, मल्टीनेशनल कंपनी है फॉर टायर मैन्युफैक्चरिंग। कौन ओन करता है, राम प्रसाद गोयनका ग्रुप ओन करता है, जिसको हम आरपीजी ग्रुप भी कहते हैं, राइट। सो 2 साल के लिए फॉर अ टर्म ऑफ 2 years अर्नब बैनर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ व्हाट, MD एंड CEO ऑफ CUET टायर्स, राइट। उन्होंने एज वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन करा था इन द ईयर 2005 एंड उनको काफी इयर्स का एक्सपीरियंस है, राइट, काफी इयर्स का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस है एट एन एग्जीक्यूटिव पोस्ट। 30 इयर्स तक उन्होंने अलग अलग कंपनीज में, CUET में, मैरिको में, बर्जर पेंट्स में, सब में काम करा है। IIT खड़गपुर, IIM कोलकाता एंड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इन तीनों प्रेस्टिजियस एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स के ये एल्यूमिनस रह चुके हैं। एंड ये क्या है, ये हैं आपके अर्नब बैनर्जी। उससे पहले कौन थे, उससे पहले थे अर्नब बैनर्जी ने किसे सक्सीड करा, अर्नब बैनर्जी, आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन फॉर हियर, अर्नब बैनर्जी, ही इज एक्चुअली रिप्लेसिंग और सक्सीडिंग, whom he is actually replacing or succeeding अनंत गोयनका, राइट, अनंत गोयनका। सो ये किसे सक्सीड या रिप्लेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं अनंत गोयनका को। अनंत गोयनका अब he will be in the non-executive, he will be a non-independent director, right, और अब completely कौन बन गया है MD and CEO, it is अर्नब बैनर्जी, alright। Now moving further, we have the next news, World Happiness Report 2023। नाउ ये जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, ये इस साल जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसको हम हैप्पीनेस इंडेक्स भी बोलते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, दैट मीन्स वो आपसे इसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। इंडिया का रैंक है 126, कितने कंट्रीज टोटल मेजर हुए थे, 146। नाउ कुछ चीजें हैं कि जब भी आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो, कोई भी आप रिपोर्ट रैंकिंग के बारे में जान रहे हो, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। कोई भी रिपोर्ट एंड ऑल पढ़ो, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो ऑल दीज थिंग्स। देयर आर सम पॉइंटर्स विच आई लेट यू नो नाउ, राइट। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज यू शुड नो दैट रिपोर्ट इज रिलीज्ड और पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, विच इंस्टीट्यूट, राइट। वो रिलीज या पब्लिश किसने करी है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर ग्लोबल रिपोर्ट है तो इंडिया का रैंक यू शुड नो, राइट, अगर ग्लोबल रिपोर्ट है तो, और उसके साथ साथ आपको एटलीस्ट टॉप 2 रैंक्स भी हमें पता होनी चाहिए। सो दीज आर द 3 थिंग्स एटलीस्ट यू शुड नो, राइट। नाउ जब मैं बात करती हूँ रिलीज किसने किया, पब्लिश किसने किया, सो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, एनुअल पब्लिकेशन है किसका, यूनाइटेड नेशंस SDSN का,
क्या है यूनाइटेड नेशंस SDSN का? ये द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, राइट? एक ग्लोबल सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, राइट? एंड उस डेटा से पता चलता है कि कौन सी कंट्री वेरी हैप्पी कंट्री है. गुड इवनिंग निखिल. विच कंट्री इज अ वेरी हैप्पी कंट्री? नाउ जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है वो कितनी है? इंडिया की रैंक है 126 एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, राइट? टॉप 2 रैंक्स कौन सी है? पहले पर है आपकी फिनलैंड, 6 सालों से, राइट? फॉर द लास्ट 6 years फिनलैंड ही आपकी रही है द मोस्ट हैप्पी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज फिनलैंड, राइट? दूसरे नंबर पे कौन सी है? सेकेंड नंबर पे वी हैव डेनमार्क एंड थर्ड नंबर पे वी हैव व्हाट? वी हैव आइसलैंड. ठीक है? यस निखिल, एग्जैक्टली. आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स में आपने अगर ध्यान दिया हो, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये कंट्रीज इंडिया से ऊपर रैंक पे हैं, राइट? और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 रैंक्स ऊपर हो, राइट निखिल? ऐसा भी नहीं है कि 1-2 रैंक्स ऊपर हो. इंडिया का 126 है तो लेट्स से पाकिस्तान का 121, 122. नो, दे आर लाइक 10 रैंक्स अबव इंडिया, राइट? बहुत सारी रैंक्स ऊपर है. ठीक है? अच्छा, क्या वो फैक्टर्स हैं जो की फैक्टर्स जो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को क्रिएट करने में, इस पर्टिकुलर डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है? पहला है सोशल सपोर्ट, राइट? द फर्स्ट फैक्टर इज सोशल सपोर्ट, which is a parameter for this particular index, कि कितना socially people are supporting each other. दूसरा है इनकम, ऑफ कोर्स भाई मनी है, मनी से खुशी तो मिलती है, राइट? तीसरा है भाई हेल्थ, दैट इज अनदर इंडिकेटर. फोर्थ है फ्रीडम, फिफ्थ है जेनरोसिटी एंड सिक्स्थ है एब्सेंस ऑफ करप्शन. ना अगर मैं आपसे बात करती हूं कि क्या श्रीलंका, क्या पाकिस्तान, अगर इफ आई से ऑन दीज 6 फैक्टर्स, क्या एक्चुअल में ये सारी चीजें जो हैं वो ट्रू होल्ड करती हैं, सीइंग द सिचुएशन ऑफ दीज कंट्रीज इन व्हाट, इन द ग्लोबल सिनेरियो? क्या ऐसा है? I think Nikhil, no, it is not about the biasness of the report. Nikhil, the main factor which plays over here is the population size, right? जो हमारा population size है ना, that is so vast. We are the most populous nations of the world. And आप इतना सोचो कि जितना ज्यादा country populated होगी, उतने ज्यादा ही वेरिड ओपिनियंस, वेरिड रिजल्ट्स होंगे ऑफ पीपल, राइट? एंड दैट इज द रीजन वाई अगर हम क्यूमुलेटेड स्कोर निकालें तो मे बी हम जो छोटे नेशंस है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, उनसे हम क्या करें? उनसे हम ऊपर ना रहे, बिकॉज ऑफ द वास्ट पॉपुलेशन दैट वी हैव, राइट? एक देयर इज दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. I am not very sure that it got published in which newspaper or something, but that report states that the most happy nations of the world, right, are the nations who take the most amount of antidepressants, right? एक रिपोर्ट थी अबाउट द एंटीडिप्रेसेंट्स. तो एंटीडिप्रेसेंट्स वो हैप्पी नेशंस में, यूरोपियन नेशंस में बहुत ज्यादा ली जा रही है, राइट? द कंजम्पशन ऑफ दिस इज रियली हाई. सो इसीलिए आई थिंक द रिपोर्ट और द स्टडी दैट आई वाज गोइंग थ्रू was actually I don't exactly remember. I think it was called as the happiness paradox or the happiness dilemma, right? So I'll come back to you. I'll share it with you guys in the next session if I find it somewhere. I'll share the name and everything. So coming back to the World Happiness Report, आपका पाकिस्तान, श्रीलंका जो इंडिया की नेबरिंग नेशंस है, इंडिया काफी टर्म्स में इन सारी कंट्री से बहुत हाई है, बट स्टिल इन द हैप्पीनेस टर्म्स हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान, श्रीलंका से भी नीचे आते हैं. वी आर एट 126 पोजिशन एंड द लास्ट नेशन और द मोस्ट अनहैप्पी नेशन इज अफगानिस्तान, राइट? सो दिस इज इट. नाउ moving further to the next news, we have QS rankings. Now जब भी आपको QS दिखे ना, ये रैंकिंग्स हैं आपकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स. QS रैंकिंग्स किसकी हैं?
QS rankings are the world university rankings. ये रैंक करती है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज को, राइट. नाउ QS का फुल फॉर्म क्या है? QS stands for Quacquarelli-Simons, right? Quacquarelli-Simons is the full form of QS and ये एक वो लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज है, वर्ल्ड का लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, एनालिटिक्स, राइट. और वो पूरा एजुकेशन सेक्टर में बहुत ही ग्लोबल लेवल पर इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस, इट गिव्स अ लॉट ऑफ एनालिसिस एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑन दैट. इस साल जो आपकी QS रैंकिंग्स हैं उसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है, मार्केटिंग, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड डेटा साइंस. तो ये 3 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है इन दिस पर्टिकुलर थिंग. और इस साल जो QS रैंकिंग्स 2023 में निकला है इज द 12th एडिशन. ओके, नाउ इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट अगर टॉप 50 में है, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट अगर वो आपका टॉप 50 में है, इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. इट हैज एंटर्ड द टॉप 50 institutions for engineering in this particular rankings, right? IIT Delhi, ठीक है. उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी इज द इंडियन यूनिवर्सिटी विद मैक्सिमम एंट्रीज 27, फॉलोड बाय IIT बॉम्बे एंड उसके बाद क्या 25 एंड IIT खड़गपुर एट 23, राइट. काफी सारे प्रोग्राम्स ऑफर हुए हैं एंड विद दिस व्हाट यू नीड टू नो इज, आपको ये जानना है कौन निकालता है, Quacquarelli-Simons निकालता है. दूसरा कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन है. टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी कौन सी है? इट इज MIT विच इज मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट. MIT US आपकी नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो कि है आपकी UK में, एंड थर्ड पर है आपकी कौन सी? थर्ड पर इज द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी विच इज इन US again. So these are the top 3 institutes. Top 50 में इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है वो कौन सी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है? That is IIT Delhi, right? Now, moving further to the next news, we have Hurun Global Rich List. India ranks 3rd in terms of self-made billionaires. Now, अगर आप इस पर्टिकुलर लिस्ट की बात करो, हुरून रैंकिंग्स की बात करो, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करो 2023 की, लास्ट ईयर भी इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, इस साल भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. अगर मैं सेल्फ मेड बिलियनर्स की बात करती हूँ, सो बेसिकली ये जो है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट एक कंपाइलेशन है, राइट. एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है हुरून प्लस किसका? द M3M ग्रुप, राइट. इसका कंपाइलेशन है. ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं? ये लोग मिलकर ये पर्टिकुलर लिस्ट निकालते हैं. इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जिस कंट्री में सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं, वो कौन से हैं? द कंट्री इज चाइना. चाइना हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्फ मेड बिलियनर्स 891, राइट. दूसरे रैंक पर कौन है? दूसरे रैंक पर है US विथ 496 बिलियनर्स. थर्ड रैंक पर क्या है? थर्ड रैंक पर है आपका इंडिया. इंडिया इज एट रैंक 3 105. फोर्थ पर है UK 99. फिफ्थ पर है रशिया विथ 70 नंबर्स इन सेल्फ मेड बिलियनर्स. तो इंडिया कौन से रैंक पर आ गए? इंडिया आ गया रैंक 3 पर. मतलब इंडिया ने इस साल 105 सेल्फ मेड बिलियनर्स जो है वो बनाए हैं. वर्ल्ड लेवल पे इट इज एट रैंक 3. Now, the next news for the day we have is RBI allowed India and Tanzania to use national currencies for trading, right? हमें इंडिया की करेंसी पता है क्या है? It is what? It is INR, right? और उसके अलावा जो हमारी करेंसी है तंजानिया की वो क्या है? इट इज शिलिंग. सो बेसिकली नेशनल करेंसीज जो बायलेटरल ट्रेड होगी, ऑफ कोर्स उस चीज में क्या होगा? आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को कम करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड की एफिशिएंसी को और बढ़ाने के लिए नेशनल करेंसीज के थ्रू ट्रेडिंग जो है वो किया जाएगा. इससे क्या होगा? ट्रेड वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो होगा, राइट. एंड इस मैकेनिज्म के अंडर इंडिया जो है तंजानिया के कोरस्पॉन्डेंट में एक स्पेशल अकाउंट खोलेगी जिसे बोलेंगे स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, राइट. ये कौन सा है? ये वॉस्ट्रो अकाउंट कौन से अकाउंट्स होते हैं? बेसिकली ये वो अकाउंट्स होते हैं
जो डोमेस्टिक बैंक्स राइट खोलते हैं फॉर फॉरेन बैंक्स इन द फॉर्मर डोमेस्टिक कंट्रीज. सो ऑल द डोमेस्टिक बैंक्स जो अपने अपने बैंक्स में फॉरेन बैंक्स के लिए अकाउंट खोल रहे हैं, दैट इज व्हाट गोस थ्रू अकाउंट इज. सो ऐसा आरबीआई ने अलाउ कर दिया है फॉर इंडिया एंड तंजानिया. किसके लिए? सो दैट इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़े, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो उसकी एफिशिएंसी बढ़े और ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो. Now we have NISAR, which is a NASA ISRO synthetic aperture radar, right? What is NASA? National Aeronautics Space Administration, USA का है, and ISRO जो है वो Indian Space Research Organization है. किसका? इंडिया का, राइट? इन दोनों ने कोलैबोरेट करके एक अर्थ साइंस सैटेलाइट बनाया है जिसका नाम है निसार. ओके, नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रेडार. ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इमेजिंग सैटेलाइट्स होती हैं, नए नए एरियाज को डिस्कवर करना, राइट, डिजाइनिंग एंड ऑल, ठीक है, और उसके बाद देखना दैट व्हाट इज टू नेचुरल रिसोर्सेज का मैपिंग करना, उसके बाद अलावा टू चेक द डायनामिक्स ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्लेशियर्स एंड एवरीथिंग. ये पर्टिकुलर चीजें बोथ फॉर द टेरेस्ट्रियल बायोमास स्ट्रक्चर एंड द नेचुरल रिसोर्स मैपिंग एज वेल, दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट विल बी यूज्ड. आपको नाम पता होना चाहिए, नेम इज निसार. अच्छा, उसके अलावा आपको जो चीज पता होनी चाहिए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो है वो कब फॉर्म हुआ था? अगस्त 15, 1969 में, राइट? और अगर आपसे पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फादर कौन है, anyone can tell me, it is डॉक्टर विक्रम साराभाई. डॉक्टर विक्रम साराभाई इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम. एक सोनी लिव पर आजकल एक वेब सीरीज आ रखी है, रॉकेट बॉय सीजन 2. सीजन 1 सीजन 2 दोनों हैं. इफ यू गेट टाइम टू वॉच इट, इट इज वेरी weird that I'm saying this, but if you get time to watch it, it is a very informative web series, right? Do watch season 1 and 2 both whenever you're going to watch it, right? You'll get a lot of knowledge on it. So father of Indian space program कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं. इसरो, एक्चुअली इसरो जो था वो इसरो नाम 1969 में दिया गया था. हाउएवर इसरो से पहले उसका जो नाम था दैट वाज इनकॉस्पार. इनकॉस्पार वाज द नेम पहले, और इसरो नाम जो था वो बाद में दिया गया था. अच्छा, करंट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? इसरो के करंट चेयरमैन है एस सोमनाथ, जिन्होंने के सिवान को सक्सीड करा और हेडक्वार्टर्स है आपके बेसिकली बेंगलुरु में, राइट? लेकिन वहीं पर अगर क्वेश्चन आता है, जब मैं ये बता रही हूँ बिकॉज इंडिया का स्पेस सैटेलाइट, ये सारी चीजें और न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, ये सब ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली ही चल रहे थे. सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, राइट, अगर आपसे कुछ ये पूछते हैं फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा होमी जहांगीर भाभा, राइट? होमी जहांगीर भाभा वॉज द फादर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, जिन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी फाउंड किया था, TIFR भी इन्होंने फाउंड करा था, राइट? सो दिस इज इट दैट यू शुड नो. ओके, इंडियन स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई. और विक्रम साराभाई वॉज अ पर्सन इवन जिन्होंने टेलीविजन्स जो थे वो लाए थे वाया सैटेलाइट्स. तो सैटेलाइट से न्यूज चैनल, रेडियो भारती, ऑल इंडिया रेडियो, ये सारी चीजों के प्रोग्राम्स आते थे. सो विक्रम साराभाई वॉज द पर्सन बिहाइंड दैट. With this, we have last two small newses, right? Statue of Knowledge. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक पूरा सा 75 फीट टॉल स्टैचू बनाने का. आपकी महाराष्ट्र में एक जगह है लातूर, राइट, वहां पर ये बनाया जाएगा. एंड भीमराव अंबेडकर पार्क है, वहां पे बनाया जाएगा ऑन हिज 131st एनिवर्सरी. अच्छा, उनकी जो 131st एनिवर्सरी है वो आपकी होगी 14 अप्रैल 2023 को. इसको हम भीम जयंती या अंबेडकर जयंती के नाम से भी बोलते हैं, राइट? एंड अनदर न्यूज जो आपकी वन लाइनर्स के फॉर्म में ही आएगी, केवल स्टेडियम नेम्ड आफ्टर हॉकी स्टार रानी रामपाल. सो रानी रामपाल के नाम के आगे, रानी रामपाल इज अ वेरी फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर, राइट? उनके नाम के आगे और उनके नाम पर बेसिकली एक आपका
स्टेडियम नेम हुआ है MCF रायबरेली में, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम। MCF रायबरेली का जो स्टेडियम है उसको नाम चेंज करके रानी गर्ल्स हॉकी ट्रफ, ये नाम रख दिया गया है ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेडियम इन द ऑनर ऑफ रानी रामपाल। नाउ रानी रामपाल इज वन ऑफ द मोस्ट renowned players, right? She is one of the most renowned players, उनके नाम पर है। She is a prominent player of Indian hockey team, and even she has become the first woman in the sport of Indian history to have a stadium named after her. Very very important, right? So अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है name the first woman in sport to have a stadium named after her, your answer should be रानी रामपाल। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है वो? हॉकी से रिलेटेड है। She is a prominent player of Indian hockey, right? And with this field hockey, and with this we have covered all the important news that was important for you guys from the 21st to the 26th of March. Thank you so much for staying tuned. I shall be seeing you guys super soon in the next session, right? Till then, take care guys, bye bye, and have read that you guys have your accounts ka paper. So all the very best guys, thank you so much, keep smiling everybody, all the very best. This is Juhi Sharma signing off, take care, bye bye.